गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबको आवाज़ आ रही है मेरी ठीक से? गुड इवनिंग ऑल। Okay, so let's get started. I hope everything is okay in South. Don't see Sridharan. Ramu, everything fine? Your side, everything okay? Good evening, sir. Everything is fine, sir. Very good. Okay, because I stay in Dhanu, APC, so there is no problem. Yes. there is no problem. Good. Okay, because Dhanu is in Kerala, so there is flood situation. So Yes, he sir. wrote to me. Yes, sir. Yeah. There may be, sir. Yes. I don't know about. Okay, Sridharan has joined. Okay, everything fine, Sridharan, at your side? Yes, fine, sir. Fine. Okay, good, very good. All right, so let's get started. Uh, did you guys do your assignment, whatever was given? Okay, very good. So, who wants to go first? I will give you something to do. ठीक है, आपको वो करना है. You have to execute that because today we are going to do some practical to see what is your understanding, because you have to now start learning how to build positions. ठीक है, कि पोजीशन को कैसे बनाना है, तो उसके लिए हमको प्रैक्टिस शुरू कर देना है अभी. तो who Okay. wants to go? Sridharan, do you, Yeah. are I you can. comfortable? Yeah, Okay, can you comfortable. share your screen if I give you access? Yes, sure, sir. Okay. Okay, you have access, Sridharan. आपको ओके क्लिक करना पड़ेगा. Yes, Oh, fine. great. गाइज, आप सबको दिख रहा है? श्रीधरन का स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. गुड. ऑलराइट श्रीधरन, सबसे पहले देखते हैं श्रीधरन को क्या दिया था हमने. एनर्जी दिया था, राइट? Yes, sir. Energy. ठीक है. सो सबसे पहला चीज, श्रीधरन, ओपन एनएससी रिपोर्ट कंसोल. रिपोर्ट कंसोल को ओपन कीजिए. Okay, sir. Yes, sir. Just 1 second, Uday is asking me.
special class link. Okay, very good. तो अब आप रिलायंस ओपन कीजिए फॉर द मंथ ऑफ जून. Month of June. It's not working. Should work. I cannot click get data, sir. Can't click. Yes, Okay. sir. आप एक Yes, काम sir. करो, go to past this for Yeah, it's past. came. It's came. Okay. came. Okay. Okay. Yes. Okay. Good. थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए. अब एक नोटपैड ओपन कर लीजिए. ऊपर लिखिए स्टॉक नेम इक्वल टू रिलायंस. Yes. ओके. अब उसके नीचे लिखिए हाई वॉल्यूम स्ट्रोक डेट High volume. स्ट्रोक. Stroke. You can put a forward slash or something. You can remove stroke. Stroke means that forward slash. Yeah. Put a forward slash date. Okay. Now go back to report. Report पे जाइए और ये फाइंड कीजिए वो कौन सा दिन था जब हाईएस्ट वॉल्यूम था. Highest volume. The नो प्रॉब्लम उधर. total traded quantity. That means. टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी. Yes. Okay. This is showing Highest. 22 June. ठीक है. तो आप ये कॉपी कर लीजिए 16169 जो भी है. 161. Okay, copy. Just copy this. यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए और डेट लिख दीजिए 22 जून. ठीक है. अगले लाइन पे लिखिए हाई डिलीवरी स्लैश डेट. यही कीजिए. सबसे हाईएस्ट डिलीवरी देखिए. Highest delivery means 48, 45, 22, 63, 79. 79 is the same date, say 22nd. ठीक है. इसको कॉपी कर लीजिए और वहां पे लिख दीजिए. Yes, sir. ठीक Yeah, है. did it. 22 जून. What was the open price and what was the last price? जिस दिन भी हाईएस्ट डिलीवरी था उस दिन का Yeah. ओपन और लास्ट प्राइस क्या था? Open price 1028.40 and last price 1012.50. ओके. ठीक है. इसको लिख लीजिए. Sorry, 1011.65. ठीक है. Open price 22nd open price 1000.
Sir, sorry to disturb you, sir. हाँ राम. Shall we need to note down all this data so that we can have a rough work? हाँ, you have to Yes. the template that Sridharan is creating. Yes, sir. That what we are noting down. Sir. Just you have to note that template Yeah. because you will Okay. have to do it for your stock. Okay, sir. Thanks. Yes, sir. I did open price and last price. Of 22nd June. ठीक है. अब now Sridharan, Yes. read this data of Reliance and you have to figure out इस month में support कहाँ पे बना था और resistance कहाँ पे बना था. Okay. June 29 for open high low it's working. First day, 4th June, it's showing a 1941.50 last price, and it's above the high and low for 1st June. नहीं ऐसे नहीं पढ़ना है. हम कैसे पढ़ेंगे? First trading day of June, what was the open price? Open price is 920. What is the last price? Last price is 928. Now in Reliance, is it a 10 rupee level or a 20 rupee level? It's I think 20 rupee level. Check. Open another tab. Yeah. It's came internal server error. Okay. Anybody else? कोई और बता सकता है? Hence 20 rupees. 20 rupees. ठीक है श्रीधन. So Yes, you sir. will go ahead with 20 rupees. Okay. तो वापस जाइए उस पे रिपोर्ट पे. Yes. That means it's not hit any strike price this date. Okay. So of no use. Next day So, next day, 933 open हो रहा है. 933 for 41. There is no. Yeah, So it's it is hit breaking at 940. 9940. It is breaking Yes. 940. Yeah. ठीक है. ओके. तो इस तरह से पढ़ना है. ठीक है. तो इसको क्विकली करने का तरीका मैं बता देता हूँ. Which is the highest high? Highest high in this month is 1029. Mhm. High price. High 1036. So 1036 means 1020 level, right? Yeah, 1020 level. Yes. Okay. And what is the low? And low price 980. 918. 918. 18. Okay. 918 18. is the lowest low. Yes. ठीक है. So looking at this, the top level that it has broken
इज 1020. 1020 Yes. और जो नीचे इसने तोड़ा है वो तोड़ा है 920. Yes. ठीक है, अब इसको कंफर्म करेंगे क्लोजिंग लास्ट प्राइस से. लास्ट प्राइस पे किसी भी दिन पे 1020 के ऊपर क्लोजिंग हुआ है. 1020 का 1031 हुआ 21 जून का. ओके, व्हाट वाज द ओपन प्राइस? Open price is 1023. 1023. Sorry, ओके 1023 is open price. 1023, तो ये 1020 के ऊपर है. Yeah. दोनों 1020 का ऊपर. ओके, गैप अप था ये. अगर आप देखेंगे तो द प्रीवियस डे लास्ट प्राइस वाज 1019. ठीक है, Okay. 1019 था. उसके नेक्स्ट डे पे गैप अप हो गया. ठीक है, तो गैप अप हो गया इस वजह से. ओके, अब ये देखिए कि 920 के नीचे कोई क्लोजिंग हुआ है. Closing means last price. हाँ, लास्ट प्राइस 920 का नीचे नहीं हुआ. नहीं हुआ, तो नहीं. 940 का नीचे. 940 का नीचे नहीं हुआ. पहले दिन हुआ 928 is the first June. 928. Yes. ठीक है, और इस दिन का ओपन प्राइस था 920. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल सपोर्ट है 920. एक्चुअल सपोर्ट 920 पे नहीं है, 940 पे है. ठीक है, How we can say that? क्योंकि 920 पे सपोर्ट बनने के लिए 920 के ऊपर ओपन होके लास्ट प्राइस 920 के नीचे होना चाहिए, और फिर उसके अगले दिन या किसी भी दिन पे 920 के नीचे ओपनिंग होके लास्ट प्राइस जो है 920 के ऊपर होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है. Please repeat again. Need to open above the price 920 and close the closing Close below price. 920. Uh-huh. See, if 920 has to become support, अगर 920 पे सपोर्ट बनना है तो किसी एक दिन पे 920 के ऊपर ओपनिंग होगा, Okay. क्लोजिंग हो जाएगा, मतलब लास्ट प्राइस हो जाएगा 920 के नीचे. Okay. उसके बाद किसी एक दिन पे 920 के नीचे ओपनिंग होगा और क्लोजिंग हो जाएगा 920 के ऊपर. Okay. ऐसा हुआ है किसी दिन? नहीं हुआ. ठीक है, पर ऐसा हुआ है कि 940 के नीचे ओपनिंग होके 940 के ऊपर क्लोजिंग हो गया है. ऐसा हुआ है. 4th June हुआ. ठीक है, तो आप लिख लीजिए 940 पे सपोर्ट. Okay. Support. Sir, do we have to consider the last traded price or closing price, sir? Always Last we traded need to check LTP or closing price. Always our LTP, analysis. no closing price. For our analysis, always we need to check for LTP. Always last price, Okay, thank you, sir. never closing price. Okay. ठीक है, और इसी तरह से रेजिस्टेंस जो बना है वो बना है 1000 पे, राइट? Yes. ठीक है, तो 1000 पे रेजिस्टेंस है. अपने एक्सेल शीट वो नोटपैड पे लिख लिया आपने, सपोर्ट एट 940. Support and resistance is 1000. 1000 पे हुआ ना. ठीक है, और इसी के साथ में लिख लीजिए स्लैश करके. Sorry, resistance also same formula, above the Same formula. price and close below,
and हाँ. next below the price and above the price. Hmm. Okay. Okay, just revise that Tuesday class जिसमें मैंने बोला था नीचे से ऊपर जाएगा, क्लोज करेगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, क्लोज करेगा, तो वहां पे रेजिस्टेंस बन जाएगा. Okay. ठीक है, तो अब क्या कीजिए, सपोर्ट के सामने स्लैश करके लिख दीजिए 940 के आगे 920, और उसी तरह से रेजिस्टेंस के आगे 1000 स्लैश करके लिख दीजिए 120, 1020. फ्रेंड्स, ये जो 920 होगा ये वीक सपोर्ट होगा, और 1020 जो होगा वो वीक रेजिस्टेंस होगा. वीक रेजिस्टेंस का मतलब है कि केवल हिट करना, कॉन्फर्मेशन नहीं करना. ठीक है, Okay. तो 940 पे कंफर्म सपोर्ट है, 920 पे वीक सपोर्ट है. तो अगर रिलायंस को गिरना होगा तो 920 से गिर सकता है बहुत इजीली, उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. और रिलायंस को अगर ऊपर जाना है तो 1000 पे दिक्कत हो सकता है, पर 1020 पे उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए. ठीक है, ठीक. ओके. अब ये देखिए, रिलायंस का जून का लास्ट ट्रेडिंग डे का प्राइस क्या है, लास्ट प्राइस क्या है? Last trading price is 973.2. 973.20. ऑन 29 June. 973.20 इसका लास्ट प्राइस है. और फर्स्ट डे पे ओपनिंग प्राइस कितना था? Opening price is 920. 920. Yeah. तो कैंडल ग्रीन है या रेड है? Green. ठीक है, अब एक मिनट, 970 कितना, 3 है ना? 973.2 and open price is 920. 920. ठीक है, तो कैंडल ग्रीन है. ओके, Green है. अब मुझे बताइए 22 को जो मेन डे था, हाईएस्ट डे था, 22 था ना? Yeah, 22nd. ठीक है, अब 22 को इसने कोई लेवल ब्रेक किया था? 928 से 1028 से 1012 1020 को ब्रेक किया. 1020 को नीचे की तरफ ब्रेक किया है. ब्रेक किया. ठीक है, मतलब अपना एक्सेल वो नोटपैड पे लिख लीजिए, ब्रेक पॉइंट 1020. ठीक है, कोइंसिडेंटली ये ब्रेक पॉइंट और आपका वीक रेजिस्टेंस सेम है, राइट? यस सर. ओके, अभी आप क्या करेंगे कि ये जून का डेटा है ना, या मई का डेटा अपन कर लेंगे फटाफट से. मई का हाई और लो कितना है वो आपको देखना है बस.
It's not opening, it's continuously. Maybe NSE is updating something. So no problem. मेरे यहाँ पे भी हो रहा है ये. Same problem, yes, sir. वो अपडेशन हो रहा होगा. एक काम करो, चार्ट देख लो. Hello, sir. May May. open 967. Hmm. No, we Closing want to 9, know what is the high. high is 1000, 1000. ठीक है. low is 906.60. How much? 906, right? Yeah, 6.60. ठीक है. 906. ठीक है. Done है. Done है. So high is exactly 1000, right? Yes, sir. 1000. ठीक है. Low is So 906.60. right. So श्रीधरन, Yeah. आपका जो शीट है उसमें में जो रहेगा उसमें इट इज 1000 का मतलब है कि सेफली हम 980 लेवल मान सकते हैं क्योंकि 1000 इज द एग्जैक्ट हाई. तो रेजिस्टेंस कितना है? 980. और सपोर्ट कितना है? 920. Yes. ठीक है. Return. अब मुझे ये बताओ जून का सपोर्ट कहाँ है Support 940 में. और रेजिस्टेंस कहाँ पे है? Resistance is 1000. 1000. तो is the June month having a higher high, higher low or a lower low, lower high? Higher high and higher low. मई से, करेक्ट? Yeah. Yes. अपनी शीट पे लिखो प्राइमरी ट्रेंड. प्राइमरी ट्रेंड फॉर जून क्या होगा गाइस? जून का ट्रेंड क्या होना चाहिए? Publish. बुलिश. ठीक है, अपसाइड. अच्छा, अब मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूं. किसी को भी ये समझने में दिक्कत हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज. ये जो डेटा हमने निकाला है अभी तक कोई दिक्कत है? हेलो सर. हाँ बोलो. सर ये ओपन प्राइस और लास्ट प्राइस ये हाई डिलीवरी डेट का है या हाई वॉल्यूम डेट का? ये डिलीवरी डेट का है. डिलीवरी डेट. ओके, थैंक यू. हाँ, ये हमने देखा है ब्रेक पॉइंट निकालने के लिए बस. जी. First we analyze the volume only, no? Traded volume. quantity. Traded इट quantity. इज हाँ, ये कोइंसिडेंस है कि 22 जून ही है दोनों में. पर ये जो ओपन प्राइस लास्ट प्राइस हमने लिया है ये 22 जून का है, पर ये आपको डिलीवरी डेट का लेना है. Delivery quantity. Okay. हाँ, जिस दिन हाईएस्ट डिलीवरी क्वांटिटी होगा उस दिन का लेना है. इससे हमें ब्रेक पॉइंट पता लगेगा. So what about the traded quantity? Why we are seeing traded quantity? अभी करेंगे. अभी Sorry. बताता हूँ. अभी मुझे ये बताइए सब, ये जो डेटा हमने पिक किया है इसमें कोई परेशानी किसी को? Sir, excuse me, sir. हम्म. Sir, please explain about this May month, sir. May month. दोबारा बोल लो काजिम.
हाँ सर, मे मंथ के बारे में सर, जो 980 और 920 जो आया है। हाँ देखो, मैंने बस उदय से पूछा कि हाँ, मई मंथ का बस हाई बता दो और लो बता दो। ओके, दैट इज फुल तो मंथ हाई। हाँ, जो भी महीने का हाई है तो उसने हाँ बोला 1000 है। तो अगर हाँ मई मंथ का हाई 1000 है हाँ तो रेजिस्टेंस मोस्ट लाइकली उससे एक लेवल नीचे ही होगा ना। हाँ, जो 20 रुपीज का है। हाँ हाँ। हाँ, और उसने बोला कि लो जो है वो 906 का है, तो यस सपोर्ट जो है वो एक लेवल ऊपर का ही होगा। यस, हाँ सर। ठीक है, तो मैंने डिटेल में नहीं गया, जा सकते हैं, पर रिपोर्ट नहीं चल रहा है ना। हाँ तो सर, ठीक। हमने वो ले लिया कि ठीक है, 980 बाई 920 है सपोर्ट। जी ठीक है सर। ठीक है, तो हमको बस ये देखना होता है कि पिछले मंथ के मुकाबले में ये वाला महीने का जो कंफर्म्ड रेजिस्टेंस बना है और जो कंफर्म सपोर्ट बना है उसने हायर हाई हायर लो बनाया है यानी। जी ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर, तो इसमें हम लोग ये नहीं देख रहे हैं ना सर, मतलब वॉल्यूम और डिलीवरी नहीं देख रहे हैं मई वाले मंथ में, सिर्फ हाई और लो लेना है। हाँ बस हाई और लो देखना है अपने को, प्राइमरी ट्रेंड देखना है एक बार। जी ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। यस। हाँ सर, ये ब्रेक पॉइंट 1020, ये कैसे किस अकॉर्डिंग लिखा सर ये? ये इसलिए लिखा कि देखो डिलीवरी डेट जिस दिन हाईएस्ट आया था 22 जून था ना उस दिन। यस 22 जून को ओपनिंग हुई थी 1028 पे यस, और क्लोजिंग हुई थी 1011 पे। ओके सर। श्रीधरन वो लगाना क्या बोलते हैं, सो नोटपैड। अकॉर्डिंग टू डिलीवरी डेट ब्रेक पॉइंट निकालना है। हाँ, जिस दिन पे हाईएस्ट डिलीवरी होता है उस दिन पे आपको यस, ये देखना है कि कोई की लेवल टूटा था क्या। या दैट इज ठीक है, कॉल्ड अपने को ब्रेक समझ पॉइंट। में आ गया। हाँ, दैट मतलब मैंने नाम रखा है ब्रेक पॉइंट, आप कुछ भी रख लो उसको। यस यस ठीक है मतलब ये मेरे नाम दिए हुए हैं यस, ठीक है, तो ओके। वो फाइंड आउट करने के लिए मैंने इसको लिख लिया है। क्लियर सबको? Sir, Clear, sir. for trading हाँ in सर। August, we start analyzing it from June. हाँ जून। ठीक है, आगे बढ़े। Sir, if we are trading in August, we have to see May and जुलाई, June, June and July, or May to July, जून एंड जुलाई, जून एंड जुलाई। June and July. Okay, so 2 months. we need to see. हम्म, Okay. ठीक है, तो अब जुलाई को ओपन करो, रिपोर्ट पे देखो खुल जाता है। It's not opening. I can't click the get data, sir. It's not responding. टाइम पीरियड गलत है शायद से 31/6/2018 है 31/7/2018 Oh, okay. Sorry. Even though it's not responding.
Yeah, it's came, sir. July month, I received that. The high price, low price. The delivery date was 41, 50, 84. So 84 is the highest delivery date, 12th July. Sorry, I was talking on mute. Okay. Sridharan, what is the highest volume of June? Volume. Traded quantity, huh? Okay. जून लिखा है आपने इस पे? July. जून Okay. जून का आपने लिखा हुआ है इसमें? Yeah, June Notepad is में लिखा है। 22nd. Yeah, 22nd June. कितना? How much? The 1 crore 61 lakhs 61 लाख। 69,000. ठीक है। अब जुलाई में चले जाओ, जुलाई का डेटा में जाओ, देखो 1 करोड़ 61 लाख का वॉल्यूम टूटा है। Yeah, 2000. 1 crore 81 ऐसा कुछ। पहली बार कहाँ टूटा है देखो। पहली बार टूटा 5th जुलाई। 5 जुलाई को टूट गया। Yes. ठीक है, इसका मतलब होता है जुलाई में रिलायंस ट्रेडेबल है। Okay. ठीक है। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट, आपको ये कैसे पता चलेगा कि ट्रेडेबल है या नहीं? Okay, sir. ठीक है, उसके लिए सबसे पहला चीज है कि वॉल्यूम टूटना चाहिए। Okay. वॉल्यूम टूट गया? हाँ टूट गया। 5th जुलाई का टूटा। टूट गया ना? इसका मतलब इसको रिलायंस को जुलाई में ट्रेड कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है। अब प्राइमरी डायरेक्शन किस तरफ है? प्राइमरी डायरेक्शन Upside. जून में क्या समझ में आया था? प्राइमरी डायरेक्शन जो हमने लिखा था। प्राइमरी डायरेक्शन इज इट्स बुलिश सर। बुलिश लिखा था ना? ठीक है। अब फर्स्ट डे पे देखते हैं क्या हुआ है। 2 जुलाई को ओपन कहाँ हुआ? 972। 972.35। ठीक है, और क्लोजिंग किया इसने 960 पे, 960.05 पे। तो कोई लेवल नहीं टूटा है। अगले दिन 965 पे ओपन हुआ है। कैन यू रिमूव द नोटपैड प्लीज श्रीधर? जस्ट मिनिमाइज इट। नेक्स्ट डे पे ओपन हुआ है 965 पे, क्लोजिंग दिया है 971, कोई लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। उसके अगले दिन 971 पे ओपनिंग, क्लोजिंग दिया है 990 पे। 980 91 980 टूटा है। हाँ 980 टूट गया है। ठीक है, तो 980 ऊपर की तरफ टूटा है, करेक्ट? यस। अगर ऊपर की तरफ टूटा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। ऊपर की तरफ टूट रहा है ना? या ठीक है, ओके। तो 980 टूट चुका है। अब देखते हैं अगले दिन पे ओपन हुआ है 997 पे, और क्लोजिंग कहां दिया है? 964 पे। 964 इट्स तो 980 पे रेजिस्टेंस बन गया है। यस। मानते हो नहीं मानते हो सब? Yes, sir. करेक्ट सर। Because it opened above and closed below this one, right, sir? वेरी गुड। Point. Yes. ठीक Yes, है, sir. 980 पे रेजिस्टेंस कंफर्म्ड कौन से दिन पे? दिस इज 6th जुलाई। सॉरी 5th जुलाई। 5th जुलाई। 5th जुलाई। 5th जुलाई कोइंसिडेंटली उस दिन पे सबसे हाई वॉल्यूम भी टूट गया।
Yes. ठीक है, प्राइमरी डायरेक्शन क्या है? बुलिश। बुलिश है। अब मुझे बताओ मई का रेजिस्टेंस कहां पे था? Make a 980. Resistance is 980. 980। 980 पे था। हाँ सर। Yes. मोस्ट लाइकली अब सपोर्ट बनेगा 980 पे। ठीक है, देखते हैं। देखो अब रेजिस्टेंस बन गया 980 पे। Yes. ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ट्रेडेबल है, हमको ये भी पता चल गया ट्रेडेबल है रिलायंस, Okay. क्योंकि वॉल्यूम टूट चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट डे पे देखते हैं। ओपन हुआ 964, क्लोजिंग किया 977। 977.50. उसके अगले दिन ओपनिंग कर रहा है गैप अप करके 987 पे, और क्लोजिंग कर रहा है 996 पे। पर ये गैप अप है तो अपने को कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें। ठीक है, ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था ना एग्जांपल लेके। अच्छा, नेक्स्ट डे देखते हैं। ओपन हो रहा है 1002.75. अब मुझे ये बताओ 9th ऑफ जुलाई को क्या प्राइस जो 980 पे रेजिस्टेंस था 9th ऑफ जुलाई को जब ओपन हो रहा है, क्या वो रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो रहा है? Yes. यस। ऐसा क्यों भाई? रेजिस्टेंस के ऊपर क्यों ओपन हो रहा है? समझ में आ रहा है? It's breaking the resistance. No? हाँ, did it ever revisit 980 after that? कभी भी 980 पे आया? नहीं है. और सर नो। समझ में आ रहा है स्टॉक कैसे मूव करता है? हाँ. हाँ सर। ठीक है, अब इसने तो रेजिस्टेंस ही तोड़ दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं। आप चाहें तो इस दिन भी ट्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, पर अभी तो 9 ही तारीख है, कोई बात नहीं। देखते हैं कि सपोर्ट कहां बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट डे पे 1000 पे ओपन हो रहा है और 1027 को ब्रेक पे क्लोज हो रहा है, तो इसने 1020 का लेवल भी तोड़ दिया है। करेक्ट? Yes. ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब अगले दिन देखते हैं 1025 पे ओपन हो रहा है, 140 पे क्लोज हो रहा है, 140. तो इवेंचुअली इसने 140 भी तोड़ दिया है, 1040। चलो कोई बात नहीं। अगले दिन 1044 पे ओपन हो रहा है, 1080 पे क्लोज हो रहा है, तो 1080 भी तोड़ दिया है। 60 and 80 दोनों तोड़ हाँ, दिए. 60-80 तोड़ दिया। अगले दिन 80 के ऊपर क्लोज ओपन हो रहा है, 1100 के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो 1100 भी तोड़ दिया। ठीक है, उसके नेक्स्ट डे कहाँ था? 99.8. हाँ, 16th June. तो ये 1100 के नीचे खुला है। पिछले दिन इसने 1100 के लेवल को तोड़ दिया था। Yeah. 1100 को तोड़ दिया. तोड़ दिया था ना। अब Yes, देखो ये 1100 के नीचे खुल रहा है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा गिरेगा, करेक्ट होगा। अब देखो लो टूटने लगे। Yeah. आप देखोगे 1080 लोअर लोज बनने लगेंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं। ये कहां आ गया? 1078 पे। Yes. ठीक है, तो इसका मतलब 1080 पे नीचे टूटा है। Yeah. ठीक है, अगले दिन ओपनिंग कर रहा है 1078 पे और क्लोजिंग कर रहा है 1094। तो इसका मतलब कहां सपोर्ट बना है? 1080 पे। Yes. Yes, sir. अब ये ऊपर चला जाएगा।
आप अगर देखोगे तो 1080 से लेके 1180 तक चला गया है। गया? Yes. ठीक है, Highest 1190.4. करेक्ट, That चला गया ना। Yeah. तो आपको जब ट्रेड करना है, बुलिश करना है, तो सपोर्ट चाहिए। ठीक है, सपोर्ट कहां बना? 1080 पे। कौन से दिन पे बना बताओ? 17 जुलाई को। 17th July. ठीक है, Yes. 17 जुलाई को बना। अब इसको लॉन्ग ट्रेड करो, फ्यूचर में करना है फ्यूचर में करो, ऑप्शन में करना है ऑप्शन में करो, इंट्राडे में करना है इंट्राडे में करो, जिसमें भी करोगे प्रॉफिटेबल रहोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको बोलते हैं विनिंग ट्रेड सेटअप। अब Okay, that means it's breaking the resistance. It's going forward every day. But if it is not breaking the resistance, what is the scenario? if it is not what breaking the This stock is already break the resistance. Gap up opening and breaking the resistance and going forward. If it is not breaking the resistance and in between the range, how we can determine? you will and see, if you have to trade long, wait for the support formation. Okay. If you have to trade short, wait for the resistance formation. Resistance formation. Okay. Okay. Now one more important thing that we noted on your sheet. Go there. Did we note something called as breakpoint? Breakpoint no, maybe? means yes, 1020. 1020. Support formation कहाँ हुआ है? Support formation 940. 940 कहाँ? 20. सपोर्ट फॉर्मेशन जुलाई में कब हुआ है? 1080 पे। 1080 1020 के ऊपर है। Yes, sir. हाँ, it's a higher high, right? It's higher. Yes, sir. Correct? It is higher than the break point. Yes. ठीक है, तो अगर सपोर्ट फॉर्मेशन ब्रेक पॉइंट के ऊपर हो रहा है तो ये आपको डुअल कॉन्फर्मेशन दे रहा है। ठीक है, कि स्टॉक में अपवर्ड मोमेंटम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, Okay. ऑलराइट। अब लेट मी आस्क, This breakpoint is for month of May, month of June, no? जून Yeah. मई So we का have to सिर्फ consider- हमने इतना ही डेटा यूज किया जस्ट टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी ट्रेंड। Okay. The June breakpoint we have to consider. जून। Okay. ठीक है, जुलाई में ट्रेड कर रहे हो ना? यू आर ट्रेडिंग इन हाँ। जुलाई, July. so okay. you need to know the break point of, see, break point is a terminology which I have named. You can name it anything. It doesn't have a textbook relationship. Okay, I call it a Okay. break point in my language. Okay, you want to call whatever you can call, but I want to note down a level, okay, where a significant activity had happened in the last month, in the previous month. ठीक है, Okay. तो पिछले महीने में जहां पे भी जिस लेवल पे एक सिग्निफिकेंट एक्टिविटी हुआ है, ओके, मेरे को उससे मतलब है वो सिग्निफिकेंट लेवल 1020 का था। अगर वो 1020 का था और इस महीने में मेरा जो सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा है वो 1080 पे हो रहा है, तो लाइक्लीहुड तो यही है ना कि ऊपर जाएगा। Yes. ठीक है,
the first trigger should be like the volume breakout of the previous month, right? If you want to trade विदाउट अ that. वॉल्यूम ब्रेकआउट यू विल नॉट ट्रेड बिकॉज वो साइडवेज हो सकता है. Right. ठीक है, इसका लॉजिक समझो कि मैंने क्यों बोला कि वॉल्यूम को चेक कर लेना है, वॉल्यूम में ब्रेकआउट होना चाहिए. वो लॉजिक ये है कि ट्रेडर भी होना चाहिए ना उसमें, उस स्टॉक में ट्रेडिंग इंटरेस्ट होना चाहिए. और वो इंटरेस्ट किससे पता लगता है? वो इंटरेस्ट मेरे को पता लगता है वॉल्यूम से, और डिलीवरी क्वांटिटी से क्या पता लगता है मुझे? पोजीशंस. करेक्ट. तो मुझे ये समझ में आया कि पिछले महीने जो पोजीशंस बनी थी वो 1080 लेवल्स, सॉरी 1020 लेवल्स पे बनी थी. तो अगर इस महीने की पोजीशंस उसके ऊपर बन रही है तो मैं कंफर्टेबल हूं ना. ऊपर मतलब ऊपर बना रहा है कोई पोजीशन, तो इसका मतलब ऐड कर रहा है. ठीक है. तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है. ट्रेड करना है मतलब ट्रेड ढूंढना है. ओके, ये मास्टर्स लेवल है. डोंट वरी अबाउट वो जो वीडियो में देखा था. ठीक है, वो एडवांस लेवल है. व्हाट यू आर रीडिंग इज मास्टर्स लेवल. ठीक है. तो आप किसी भी स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप निफ्टी 50 के किसी भी स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो, आपको किसी ने नहीं पकड़ के रखा है. पर इस तरीके से अगर आप स्टॉक को ढूंढोगे, कितने स्टॉक्स हैं शैलेश निफ्टी 50 में? 50 stocks. 50 स्टॉक. जी सर. यस 50 है ना? 50. या रोज लोग सुबह उठते हैं और परेशान हो जाते हैं अपने आप में, किसको ट्रेड करूं, किसको ट्रेड करूं, किसको ट्रेड करूं. अब मुझे ये बताओ, 50 स्टॉक्स को मॉनिटर करना क्या बहुत मुश्किल काम है? और वो 50 में से 25 में तो वॉल्यूम ब्रेकआउट भी नहीं होगा. यस सर. सुबह ही 50 ढूंढ लेते हैं सर. एक ढूंढने के चक्कर में 50 ढूंढ लेते हैं. हाँ, तो इसलिए आप निफ्टी 50 का हर स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो, प्रोवाइडेड उसमें ट्रेडिंग इंटरेस्ट आ रहा हो. अब मुझे एक बात बताओ, टेलीविजन देखते हो सब? ठीक है, ये सब जितना बड़ा बड़ा सब टीवी चैनल है, उसमें जो सब बहुत पढ़े लिखे जो एनालिस्ट आते हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि फार्मा में बॉटम आउट हो रहा है, फार्मा बॉटम आउट हो रहा है. ठीक है, इस टाइप से बोलते हैं ना, राइट? वो कैसे बोल लेते हैं? उनको कैसे पता चल जाता है ये सब? उनको ऐसे पता चल जाता है. ठीक है. अब मान लीजिए कोई स्टॉक में, मान लीजिए कि लुपिन है या सन फार्मा है, बहुत गिर रहा है. करेक्ट. अब लोग उसको शॉर्ट करते हुए आ रहे हैं. ओके, किसी महीने में क्या होता है कि उसमें वॉल्यूम ही ब्रेकआउट नहीं होता है. उसके अगले महीने जब, तो अगर वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप ट्रेड ही नहीं करोगे ना उसमें. यस और नो? ठीक है. यस सर. तो आपने ट्रेड नहीं किया एक महीना, मान लो सन फार्मा को या ब्लूपिन को या जो भी है, जो भी गिर रहा है या जो भी है. अब उसके अगले महीने तो वो आपकी लिस्ट में रहेगा ना, क्योंकि हो सकता है ना कि उसका अगले महीने ब्रेकआउट हो जाए. ठीक है. अब हुआ क्या कि जिस महीने आपने ट्रेड नहीं किया, उसने हायर सपोर्ट बना दिया. अब अगर उसने हायर सपोर्ट बना दिया, आपके दिमाग में एकदम से क्या आ जाएगा कि अब ये गिर नहीं सकता है. क्योंकि अगर इसको गिरना होता तो ये एक लोअर हाई और एक लोअर लो बनाता, राइट? तो इसका जो सपोर्ट है वो पिछले महीने के मुकाबले नीचे होता. करेक्ट. और जहां पे भी पोजीशन बनती फ्यूचर में, वो ब्रेक पॉइंट के नीचे होती. राइट? यस नो मे बी. अब अगर उसका उल्टा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक बॉटम आउट हो रहा है. ठीक है. इसी तरह से जब स्टॉक को करेक्ट होना होता है, मतलब उसको गिरना होता है, ओके, एक डाउनफॉल या डाउन ट्रेंड में जाना होता है,
तो वो अपने टॉप को फॉर्म करेगा और वो आपको बताएगा कुछ इस तरीके से कि अब मैं लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाने वाला हूं। अब देखो इंट्राडे में भी मैंने कैसे फटाक से देख करके बोल दिया, अब देखना कि लोअर लो बनेंगे, लोअर लो बनेंगे। हाँ या ना? ठीक है, क्योंकि वो एक लेवल के नीचे ओपन हो रहा है, तो अब इसमें थोड़ा सा करेक्शन आएगा, थोड़ा सा वीकनेस आएगा इसमें, क्योंकि लोग थोड़े डर जाएंगे कि अब इसका अप ट्रेंड खत्म हो गया, तो पीपल विल ट्राई टू एग्जिट आउट। आप इंतजार कीजिए उसमें सपोर्ट बनने का। ठीक है, जैसे ही उसमें सपोर्ट बन जाता है, इसका मतलब अब ये रन करने के लिए तैयार हो गया है दोबारा, मतलब अगली लेग के लिए तैयार हो गया है। अब याद करो, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ना, जिग जैग बढ़ता है आगे। गाइस कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके, तो मैंने पढ़ाया था ना कि जिग जैग करके बढ़ता है। Yes, sir. ठीक है, अब मुझे ये बताओ श्रीधरन, अगर हम देखें मई में, व्हाट वाज द टॉप रेजिस्टेंस? Its may stop resistance 980, sir. ठीक है, 980 पे गया। उसके बाद जून में बॉटम सपोर्ट कहां पे था? Bottom support is 940, sir. 940। इसका मतलब 980 से एक डाउनवर्ड लाइन आई 940 तक। 40. 940 पे जब आया, उसके बाद उसने अगला हाई कौन सा बनाया जुलाई में? 1000. July. सॉरी, जून में June में 1000, sir. 1000। इज इट हायर देन जो पिछला वाला था Yes. 980 का? ठीक है, 980 से ऊपर है. हाँ, तो ये 980 के ऊपर गया, 1000 पे गया। 1000 पे जाने के बाद फिर ये थोड़ा सा स्लाइड करके कहां तक आया? 980 तक आया। जुलाई में हमने देखा, सॉरी 1000 कितना था वो, 1000 तक गया। 1000 जाने के बाद वो हल्का सा स्लाइड किया और उसके बाद 980 पे आकर के फिर सीधा जो है 1080 पे चला गया। करेक्ट? Yeah. तो ये जिगजैग समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है, अब देखो, ओके, आई टुक द एक्सेस बैक। ठीक है, Okay, sir. आप लोगों को मेरा एक ब्लू कलर का कुछ स्क्रीन सा नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, ओके। अब एक ब्लैंक स्लाइड नजर आ रहा होगा। Yes, sir. yes. ठीक है, Yes, sir. अब देखो, मई का जो टॉप था, टॉप मतलब रेजिस्टेंस बताना मेरे को सिर्फ। ठीक है, कितना था मई का? 980. 980. 980। ठीक है, लो कितना था? 920। 920. ठीक है, अब मुझे जून का बताओ, जून का लो कितना था और हाई कितना था? 940 and 1000. 1000 और 940. 940। ठीक है, Yes. 940। और जुलाई में क्या हो गया जब आपने ट्रेड किया? कुछ 980 था शायद उसका लो। करेक्ट? Yes. ठीक है, 980 था और कहां तक चला गया?
180. 1008 Above 1100. 1160 मान लो, ठीक है। कंफर्म जो रेजिस्टेंस लेवल होगा 1160 मान लेते हैं, ठीक है। गॉट इट। अब देखो ये कहीं यहां से आया होगा, ऐसे गया, अच्छा, ये कहीं ऐसे गया, राइट। yes, sir. ओके, इसको ऑलराइट, ऐसे हुआ, Yes, sir. ऐसे हुआ, मान लो अगस्त में कुछ ऐसा, पैटर्न समझ में आ रहा है। Yes, sir. ठीक है। अब देखो आप जब नेकेड चार्ट्स को देखोगे, ठीक है, उसमें हेड और टेल कुछ शायद समझ में नहीं आएगा, ओके। पर जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन को थोड़ा थोड़ा मैनेजेबल अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते जाओगे, आप देखो आपको ये पैटर्न क्लियरली नजर आने लगा है। हाँ या ना? क्लियरली Yes, sir. नजर आने लगा है ना। Yes. हाँ sir. Yes, sir. अब अनाड़ी ही होगा ना जो इसको बेचेगा, रिलायंस को। हाँ या ना? Yes, sir. अनाड़ी ही बेच सकता है, ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बेचेगा। क्लियर? Clear. और आप लोग क्या हैं? Professional traders. Sir. प्रोफेशनल ट्रेडर्स, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस तरीके से काम करेंगे। Going to be a professional traders. हाँ, बट सी if you are doing an MBA, you are treated as an MBA, right? Yes. So you have to yes. think like an MBA. So Sure. Sure. if you will practice with a vision that I want to become a professional trader, only then you can become. Yes, sir. Yes. ठीक है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर हर जगह मुंह नहीं मारेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया में कौन सुबह उठ करके कितने ट्रेड्स कर रहा है, ठीक है। उसको ये पता है कि उसको क्या ट्रेड करना है, ओके, और वो केवल उसी को ट्रेड करेगा। और क्योंकि ये प्रोफेशनल ट्रेडर है तो किसी महीने में हो सकता है कि कोई अनाड़ी टाइप जो आदमी है शायद वो 200% बना जाएगा, ये शायद 180% ही बना पाएगा। पर ऑन अ लॉन्ग टर्म जो अनाड़ी ट्रेडर है वो महीने का 200 300 400% करके लॉस करेगा, ये तब भी कंसिस्टेंटली 200 300% करके प्रॉफिट बनाता ही चला जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो गाइज व्हेन आई से इट इज पॉसिबल, देखो ज्यादातर लोग क्या करेंगे कि कोई भी एक्सेल शीट मुंह उठा के बना देंगे कि मेरे को कल सुबह से उठ के ना 20-20% रोज फायदा होगा, ठीक है। एक तरीका वो है कि मुंह उठा के बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ सीखे एक एक्सेल शीट बना देना कि 20% प्रॉफिट मेरे को हर महीने मिलेगा, ठीक है। और इस तरह से समझ बूझ के, जिस तरह से आपने, देखो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप ही ने किया, ठीक है। यू ओनली ओपन द स्टॉक, यू ओनली फाउंड आउट द की लेवल्स, ठीक है। यू ओनली फाउंड आउट द सपोर्ट लेवल्स, यू ओनली फाउंड आउट कहां से क्या होने वाला है, और यू ओनली फाउंड आउट द zigzag पैटर्न, ठीक है। अब अगर आप एक रियलिस्टिक टारगेट रखोगे कि मुझे परेशान नहीं होना है, ठीक है, आई कैन नॉट स्ट्रेस आउट माई सेल्फ, मुझे ये दिमाग में रखना है कि मुझे हर महीने 150% या 200% पे अपने कैपिटल को ग्रो करना है, ठीक है।
और मान लो कि माई कैपिटल इज एज स्मॉल एज 100%, 10,000 रुपीज, ठीक है, या इवन उससे भी कम हो सकता है, ठीक है। तो अब अगर अपना आप वो एक्सेल शीट बना रहे हैं और उसमें अगर आप 100% ग्रोथ के हिसाब से आप प्रोजेक्शंस डाल रहे हैं, आप मुझे बताओ कि उस एक्सेल शीट में कोई मतलब उसको बनाने में कोई हर्ज है? मतलब इज इट ओवर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ? No. Good, sir. ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं समय दो, थोड़ा सा वक्त चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने इन पैटर्न्स को देखा है इस तरह से, अभी एक दो एग्जाम्पल और करेंगे हम, ओके, और आप देखोगे हूबहू यही पैटर्न बनेगा, कुछ अलग नहीं है, यही होता है स्टॉक मार्केट में, रोज सुबह उठोगे यही करना होता है। ठीक है। Sir, I had a question. हाँ, Looking हाँ, at this particular figure for Reliance, so if I am trying to trade Reliance in August, I should be looking at a buying zone of 9,000, right? देखो आपको क्या करना होगा कि रिलायंस आप ट्रेड कर रहे हो मान लो अगस्त में, करेक्ट? Yes. अभी प्राइमरी ट्रेंड क्या दिख रहा है? बुलिश ही है, करेक्ट? Yes. अब क्विकली मुझे देख के बताओ कि रिलायंस का हाईएस्ट वॉल्यूम इन द मंथ ऑफ जुलाई कितना था? Twelfth July, sir. 12th ऑफ जुलाई को था, July. ओके। कितना वॉल्यूम था? Volume is 2,41,09,297. ठीक है, अगस्त में टूट गया है क्या ये? अगस्त में देखना पड़ेगा। अभी तक नहीं टूटा है, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी मूवमेंट होने की संभावना अभी तक तो बनी नहीं है, ठीक है। अभी तक ये वॉल्यूम टूटा नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते हो, यू कैन स्टिल ट्रेड। अब देखो मान लो जुलाई ओपन करो, जुलाई में जो टॉप मोस्ट वॉल्यूम था वो किस दिन पे आया था? 12th July, no? डिलीवरी, ट्वेल्थ जुलाई। Yes, sir. गाइस कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ, कब आया? 12 जुलाई को हाईएस्ट Yes, sir. डिलीवरी, 12. Yes, sir. Yes. 84 lakh. ठीक है, 84 lakhs का है Yes, sir. अभी। 12 जुलाई को कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ? Yes, sir. 1080, 1690. ठीक है, 1080 और 1060 दोनों ही ब्रेक हुआ, राइट? Yes. इस महीने देखते हैं 1000, मान लो 1060 ब्रेक हुआ था,
जो लोएस्ट वाला था वो 1060 था, राइट? अब देखते हैं अगस्त में इस दिन ओपन हुआ, छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, दिखता नहीं है, हालांकि वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं हुआ है अभी तक। प्रॉब्लम है। तो ये कहाँ ओपन हो रहा है? ये ओपन हो रहा है 1190, 1188, कोई लेवल ब्रेक नहीं हुआ, 91 यहाँ पे ब्रेक हुआ, राइट? 1180 ब्रेक हो गया, यस नो में भी 1180 ब्रेक हो गया, अगले दिन भी कुछ ब्रेक नहीं हुआ। अब देखो ये वापस ऊपर आके क्लोज हो गया 1194, तो 1180 पे इसने सपोर्ट बनाया, हाँ या ना? ठीक है, अब ये जो 1180 का लेवल है वो 1160 के ऊपर ही है ना, जो पिछले महीने का जो ब्रेक पॉइंट था। Sir, that is 1020 only. नहीं, पिछले महीने मतलब जुलाई का ब्रेक पॉइंट, अगस्त देख रहे हैं ना, जुलाई ब्रेक पॉइंट अभी तो देखा था हमने। So it was 1060. 1060 ना, Yes, sir. ठीक है, उसके ऊपर ही बन रहा है ना ये 1180 ब्रेक पॉइंट के ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है? ऊपर बन रहे हैं। ऊपर बन रहा है ना, सपोर्ट है। Yeah. अब देखो कहां पे सपोर्ट बन रहा है, 1180 पे कहां पे गया प्राइस, ऑलमोस्ट 1220 पे। Yes, sir. उसके बाद राइट, पर इसमें अभी जो परेशानी है वो ये है कि इसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है, तो इस वजह से कोई बड़ा ट्रेड नहीं करूंगा अभी मैं। इज इट क्लियर? ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये 50-60 रुपए के रेंज में ही घूम घाम कर क्लोज हो जाए इस महीने, समझ रहे हो? तो अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर ले रहा हूं इसे, तो इंट्राडे ट्रेड में तो मुझे 2% का ही है ना, 2% कितना होता है, 24-25 रुपया, हाँ सर 24-25 रुपीज, राइट? 25 to 50 रुपीज तो आई विल इजीली गेट इन रिलायंस, राइट? इतना तो इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको कैश मार्केट में कर लो, क्योंकि अभी तक वॉल्यूम ही नहीं टूटा है। वॉल्यूम टूट जाएगा तो बेशक फ्यूचर्स में भी कर लो, ऑप्शंस में भी कर लो, जिसमें मर्जी कर लो इसको ट्रेड। इज इट क्लियर? So, sir, in case volume breaks out, there is no possibility of this coming back to 1080 or previous month significant levels. इट कैन वेरी वेल कम बैक, पर उस केस में क्या होगा कि वो रेजिस्टेंस करेगा और पिछले सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे चला जाएगा। So, what is the Amara? safe trade? So, should we wait for it to come back to those significant levels? Should we trade? No. Okay. No, you have to be with this zigzag. मान लो इस महीने में वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, आपने ट्रेड कर दिया, इस महीने में भी वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ तो आपने ट्रेड कर दिया, इस महीने में नहीं हुआ अभी तक, तो कोई बात नहीं, मत करना ट्रेड। हो सकता है उसके अगले महीने में वॉल्यूम ब्रेकआउट हो जाए और वो ऊपर की तरफ ही हो, ठीक है। आपको ध्यान ये रखना है कि जहां पे भी ब्रेक पॉइंट था आपका, मतलब जो सिग्निफिकेंट जगह पे पोजीशंस डेवलप हुए थे, उसके ऊपर सपोर्ट बनना चाहिए। अगर उसके ऊपर सपोर्ट बन रहा है तो मोस्ट लाइकली ये जा रहा है ऊपर, 4-5% ऊपर जाएगा ही जाएगा।
अगर ऑप्शंस की ट्रेड कर रहे हो तो मिनिमम 100% रिटर्न ऑन कैपिटल मिलेगा। ठीक है, अब देखो इस दिन पे मिला ना, इस महीने में कितना बड़ा ट्रेड है, देखो कोई छोटा मोटा नहीं है। 10% से भी ज्यादा का मूवमेंट है ये, 15% और सो। क्लियर है गाइस? Clear. पर बहुत मेहनत करना पड़ता है, मतलब इट इज नॉट हलवा, मतलब यू हैव टू रीड अ स्टॉक प्रॉपर्ली। अभी क्या है कि स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल मुश्किल इन द सेंस कि थोड़ा लेबोरियस है। once you are done then you will just look at the report and you will find out। यस 4-5 महीने के बाद बस रिपोर्ट खोलोगे, देखोगे, देख के समझ में आ जाएगा ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ ट्रेनिंग में इस तरह से कभी हाँ, देखा रवि। नहीं है फॉर वन मोर स्टॉक सर। सॉरी रवि, बोलो। मैं कह रहा था सर, इस तरह से पहले कभी देखा नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे होगा, क्या टाइम लगेगा, क्या नहीं लगेगा। क्योंकि पहले हम जो भी रहे थे वो रेडीमेड इंडिकेटर के भरोसे रहे थे, तो मेहनत करना जानते नहीं थे। इंडिकेटर में सेटिंग्स करी, यहाँ पे 14 का पीरियड लेना है, 10 का पीरियड लेना है, 20 का पीरियड लगाना है, ये लगाना है, इसके ऊपर जाए तो बाई कर लो। तो ट्रेंड की ओरिजिनलिटी समझ नहीं पाते थे, मगर अब जो समझ पा रहे हैं तो उसमें मेहनत तो लगती है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ मेहनत लगती है, मगर आज नहीं, 1 साल बाद जब हम अपने आप को देखेंगे तो हमारे लिए मतलब ये हैबिचुअल हो जाएगा, एकदम व्यवहार में आ जाएगा कि हाँ सब कुछ बहुत आसानी से होता चला जाएगा। हाँ, टाइम तो साल लगेगा। भर के बाद क्या होगा कि आप जब रिपोर्ट को देखोगे ना, वो जो हाँ सर, एनएससी वाला रिपोर्ट को देख के ही आप बोल दोगे कि ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। हाँ वही कह रहा हूँ सर, थोड़ा वक्त उसमें मतलब साल भर जिसने मेहनत कर लिया उसके लिए फिर आगे बहुत उज्जवल भविष्य है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ राइट। हाँ उदय, सॉरी। सर विल यू एक्सप्लेन फॉर वन मोर स्टॉक सर? हाँ, we will do few more examples। Okay, so guys, give me say about 5 minutes or so। ठीक है, ओके Yes. तो let's start at around say 9:25, 26। ठीक है।
Alright guys, I'm back. लोग yes लिख दीजिएगा अगर कृष्णा, मैं आपको बताऊंगा एंट्री एग्जिट कैसे बनता है, वो भी करेंगे हम, कल करेंगे, ठीक है। अभी ट्रेंड कॉन्फर्मेशन पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप बिल्कुल सटीक सीख जाओगे कि कहां से आपको ट्रेड को उठाना है, ठीक है कृष्णा। Sir, I plan to take another one class, PMT something. I seen in your YouTube video. So The now, PTMT will happen in October, next batch. yeah, that is the time. I don't know my vacation time. Actually, it's enough for us, or that PTMP is different from this course. No, PTMP also has that commodities and currency, etc. So if we are trading in equity market, it's enough. Huh? This is enough. This is enough. This is more than enough to take it as a career. Don't worry. Okay, sir. Because I plan to get another course with you. Because last time, before I am talking with you, I get a call from Allahabad, one Aerostar something advisory, financial advisory. They told you will get every month around 2 lakhs rupees with your capital of 50,000. Then okay, I said we will give a call. Then I said okay, I will try. They given 2 demo calls. It's fine. The third call is lost. Then I said no need your service. Then they said no sir, it's if you give 5,000 rupees for us, you will get a sure calls. Then I paid 5,000. Then next day they given a one call, and one is okay. The next is lost. Then I said no need your call. Then they said sir, your is a dangerous zone, so you have to pay 20,000. You will get sure calls. Then I paid 10,000. So first you pay first installment 10,000. Then you will get profit. Then you can pay. Then I pay 10,000. That is next day they given a 3 calls. 3 calls also lost. Then their managing director talk with me. You have to pay 40,000 for sure short calls. There is execute and the premier level calls like that. Then I said no need your service. Then only I think okay, we will go this course. At least we can learn from us. We will manage ourselves. We can don't want to take a blind calls. Right. See, first day I talked about something. Number 4, don't let others take charge of your trading business. Yes, sir. Okay. Yes. It's very easy to be in charge of yourself. Okay. And see, there is a very solid reason why I say all these 7 points. Okay. Just consider me. Okay, I'm say I am a trainer, but my main business is trading capital markets, right? Yeah. This I do only one batch kinds, and that too if I cannot do on a specific day, I just let everybody know that today the class won't be there. We'll do it tomorrow. Okay, so I don't have to write an application to my boss to say that okay, I need this time off or whatever. So consider me. I was working as a director. Okay. And I'm talking 5 years back, right? So Yes. my I was second line reporting to CEO of a company. And I'm not talking about a small $2 billion company or like that. I'm talking about a conglomerate organization. If I name that organization, which I don't want to, you'll be shocked that how can a person leave such a job at a director level from this company, right? I took that decision, correct? I took that decision because
I was working at least 16 hours a day. Okay. And the more you grow in a job, the more responsibilities come, and there are lots of people that you have to take care of also. Somebody is cribbing the increment, somebody has a problem at home, somebody is not is unwell, so you have to take care of all that also. So ultimately 16 hours a day to make a company rich, then why not work for myself? so, so I Sure, sir. then seriously thought about it, and today, see, I do not have very big requirements. I don't want to become Warren Buffett or Rakesh Jhunjhunwala. I don't have that kind of aspirations. Okay, my aspiration is very simple. My kids are growing, and I want them to see growing, which I could not do when I was in a job. Like when both my daughters, they were toddlers. I eventually have not seen them much. So that hurts you a lot in a longer run, because you were not there when they were actually growing up. So I didn't wanted Yeah. to live that life. So that's the reason I took this up. See, today now, because of this experience, I don't have to spend more than 1 hour in the market, right? And I spend about, say, 2 hours or so training, 2 hour, 3 hour at an average maximum. Okay. So my total work schedule is how much? 4 hours max. 4 Max to max hours. is 4 hours. Okay. Plus holidays, right? So I don't have to write an application that, okay, tomorrow I want to take my family somewhere. So I have to plan it and put a application to my boss and make him understand that it is really important. I can just let my trainees know that tomorrow I won't be there. That's it. Over. Correct. So those are the kind of flexibility that I get, and I have to just do a serious work during those 4 hours. Now, why I teach? Because this keeps me engaged, right? Yeah. There are a lot of idiots, okay, who write emails to me in the sense like our mailbox, that if you're so good in trading, then why do you teach, right? So now, if I have to find one idiot, if my target is that I want to find one idiot in a day, you will actually realize that by the time I will go outside my society gate, no, I will find at least 20 idiots. That is how the world is. So we cannot stop idiots from commenting. But I teach because it keeps me engaged. It keeps me. See, I have spent a lot of time. I have not gone to a school to learn all this. I've spent a lot of time to devise out and discover these things out of the capital markets. So it is if you have discovered something, you will let the world know, right? If Yes, Graham yes. Bell wouldn't have let the world know that about his telephone, today mobile phones wouldn't have existed, right? Sir, when They you wouldn't are have on come the into. duty, sir, when you are on the duty, when did you find this much of time to analyze the market, sir? That is the big question. See, Because I already was you are. Yes, sir. majority of the time I was outside India. Okay. So US and UK timing. So I used to get time during the day, right? Okay, okay, And without sleeping. no, I can sleep also. See how much time I have to spend. Say about 4 hours to 5 hours, right? Which Yes. and see if I'm outside because my family was never with me when I was outside. So they were always here in India. So I had a lot of time because the only thing that I had to do was order food to eat, right? So plus that gave me an advantage of looking at FTSE, working with Nasdaq data, Dow Jones data. In fact, I opened up a trading account there also, so that I can get those feeds in order to understand how the global markets work, what are the correlations, etc. So I did all that, and before that, when I was in India, I took a night shift job, so that in the daytime I can watch the market and study. It was not an easy Sir, task, honestly Yes, telling sir. you. Yes, sir. Really. sir, one of friend you told Mr. Ravi Verma, it's taking 5 to 7 trades per day.
That means he's a full trader. Huh? It's not going any He job or is there in the something. class, no? He was just talking, no? Yeah. Huh. Because every videos I listen, he's getting 5 to 7 trades per day. It's possible for working people. Say maybe it's not possible. I think. He's doing it. Like, he's managing his time accordingly. In some of the classes, he also gave, because he's working hard once the market is closed. Wow. He's working very, very hard when the markets are closed. That is what I say. The people, the guys who will work hard when once the markets have left the footprints, they'll be more successful in the live market. No, They'll be what I am extremely saying, successful. 5 to 7 trades we cannot execute in the same time. No, there is a gap, time gap. I don't think he's doing 5 to 7 trades. Some days he might be doing 4-5 trades. But I think Ravi कितना एवरेज होगा 3 का होगा शायद आपका एवरेज सर मंथली 3 बैठ जाता है ना 3 के आसपास ही होगा किसी दिन हो सकता है कि इट माइट गो टू 5 और सर मैं आपको ध्यान है कि मैं हाई मोमेंटम लेना ज्यादा पसंद करता हूँ और एकदम मतलब एंट्री ऐसे लेते हैं कि कभी कभी मेरे ट्रेड क्या होता है मैं एट ए टाइम 2 पोजीशन से ज्यादा कभी खड़ी नहीं करता हूँ मतलब मेरे एक बार में 2 ट्रेड रहते हैं तो एक 1000 रुपीज हाई वो मार्केट एग्जॉस्टिंग स्टॉक्स के लिए होता है और 1000 रुपीज मेरा उसके लिए होता है अब 2 ट्रेड मेरे एक्चुअली ऐसा रहता है कि मेरा जैसा ही एक ट्रेड खत्म होता है मैं दूसरा डाल देता हूँ तो मेरे मतलब मैंने 4 ट्रेड लिए तो सर इसमें से मेरे 3 ट्रेड लगभग मतलब सर आधे घंटे से पौन घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं वो ट्रेड मिल जाते हैं तो ले लेते हैं नहीं तो मेरा कभी कभी तो एक ट्रेड ही लेके मैं खत्म करता हूँ पूरा दिन भर खा जाता है तो वो कोई जरूरी नहीं है मार्केट जैसे दे रहा है कि भाई ट्रेड जल्दी खत्म हो रहा है आज जैसे इन पेट्रो लिया था तो इन पेट्रो 6 मिनट में मेरा ट्रेड खत्म हो गया था 6 मिनट में 20% का रिटर्न मिल गया था सेल साइड में तो ठीक है ना दूसरी जगह मेरे को बजाज फिंसर और सेल साइड में मिल गया था उसको डाल दिया था उसमें 20% लेने में मेरे को 45 मिनट लग गए तो ये चलता रहता है सर कोई दिक्कत नहीं है Right. Okay. All right. So Uday, will you try now? Yes, sir. Okay, I'll give you access. Okay. Okay, sir. Not already. Okay. Yes, sir. So let's look at Axis Bank. Yes. Okay, Axis Bank. The same thing. Go to first. Okay, first go to May data. NSA is not working. Today is bad day actually.
Getting data. Thing is terribly wrong with NSC today. Anybody else who is able to fetch this data? No, sir. No, sir, it's the same problem. for all. Mm. Sir, Hmm. so we are doing this analysis with calendar months. So if you're considering futures, would it be a better idea to do it for contract periods? Contract. You can do for contract period also, there's no problem. But because we are using cash market data, that is why I prefer doing it with 1 month. If there is a breakout within that period, like 27 to 31st or something like that, so we'll miss that. No breakout. problem. No. Why will you miss? Because what will happen is if the breakout has happened during, say, the last 2 or 3 days, okay, Right. so you will get to know during that month only. Say, for example, on 26th, the breakout happens. Okay, so you will come to know on 26th evening, no? No, if it happens after the expiry, like after the Thursday, like if it happens on a Friday. Whatever. Say it happens, the breakout happens on the last day, for example. Say it happens on the 31st of the month. You will get to know about that breakout on 31st itself, right? Right, Yes or sir, no? but we cannot consider that breakout to be a valid breakout for the current contract period. We'll have to wait for this one. No. You can. Don't worry. Okay. You can. There's no issue. See, what will happen is if you are in the last week of the expiry and there is a breakout, then anyways you will trade the next month. You will not trade the current month. Right. Current month contract you will not trade. And in cash market anyways, it doesn't matter. Right. Got it. Anyways, guys, I guess it's not working out. Okay, so let's do this. Let's continue with this tomorrow. Okay, tomorrow let's take 3-4 examples. क्योंकि आज तो template करना था पहली बार, so it took more time. ठीक है, तो कल हम कुछ examples करेंगे, and then one more class we will do position building in intraday. ठीक है, फ्यूचर में तो आपको ऐसे भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यू हैव सीन. ठीक है, मेन जो आर्ट है वो है कि इंट्राडे में पोजीशन को कैसे बनाना है. वंस यू नो अबाउट दिस, हाउ टू आइडेंटिफाई द डे एंड विच डे टू ट्रेड और कहाँ पे ट्रेड करना है. ठीक है, विच विल टेक 1 day. उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे ड्यूरिंग द
apprenticeship class. Anyways, all these concepts will get repeated at least 10 times, 20 times. Okay, guys. Yes, sir. So can the template be shared right now? Template क्या लिख लेते हैं? Okay, no. मतलब it's a small this thing. All right, guys. So let's continue with this then tomorrow. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. All right, guys. Thank you. See you tomorrow. Good night. Bye. Good night. Thank you.